सोशल मीडिया का जैसे माना जाता है, आप भी कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इस बार का सोशल मीडिया की एंट्री मेले में बैन है। कुछ पत्रकारों की आपत्तियां है कि सोशल मीडिया को रोका जा रहा है। सोशल मीडिया का इवेंट्स का देख रही थी तो कई सारे सोशल मीडिया वाले अंदर बैठ के वीडियोस नहीं ले रहे थे, किसी ने उनको रोका नहीं। इस बात के लिए आप सभी से अनुरोध है। माइक लिया गया। उनकी गर्मामयी उपस्थिति है। इसके अलावा सत्येंद्र कुमार गुप्ता जी, पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद, विक्रम सिंह जी, उपायुक्त फरीदाबाद, डॉक्टर सुनील कुमार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा टूरिज्म और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सूरजकुंड मेला अथॉरिटी, अभिषेक जोरवाल जी भी हैं टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर जनरल, आशुतोष राजन जी, जनरल मैनेजर हरियाणा टूरिज्म। और आप जानते हैं कि ओडिशा और मध्य प्रदेश, एक बार करतल ध्वनि के साथ एक ऊर्जा का स्पंदन तो होना चाहिए। सभी का स्वागत आप सबका और मंचासीन विभूतियों का आप सबकी तालियों के साथ, और सबका वंदन अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेरिटेज एंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कला रामचंद्रन जी से कि वे आपसे रूबरू हो, मुखातिब हो। पीएसडी मैडम। Station Faridabad. I welcome you all to the press conference for the 38th Surajkund Mela. As you all know, the Mela is organized by the Surajkund Mela Authority with the Union Secretary of the Ministry of Tourism as the chairperson, and it is in collaboration with the Union Ministries of Tourism, Culture, Textiles, External Affairs, and of course the Haryana government. The Mela started in 1987 and it has grown from strength to strength over the years. In 1989, the concept of theme state was introduced for the first time, and Rajasthan was the first state which stepped forward as the theme state. And then 20 years later, in 2009, the inclusion of a partner nation elevated the Mela to an international level, and our first partner nation was Egypt. This year, we are pleased to say that Odisha and Madhya Pradesh are our theme states. We are offering multilateral cross-cultural exchange, enriching the Mela's ambience through their art, heritage, culture, cuisine, and their performances. The Mela also serves as a launchpad for small and medium enterprises, empowering artisans to scale their businesses. We have over 600 foreign participants who are expected to participate in the Mela this year from over 40 nations. These include Syria, Iran, Russia, Egypt, Afghanistan, Belarus, African and Central Asian countries, along with the BIMSTEC organization, which is our partner this year. The nations from BIMSTEC comprise Myanmar, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Thailand. We are proud to say that the Northeast Handlooms and Handicraft Development Corporation is our cultural partner. It represents the diverse, intricate craftsmanship of all the 8 northeastern states. And the collaboration strengthens the cultural ties and promote the unique textiles, handicrafts, cuisines of the Northeast in the Mela. This year, for the first time, to enhance the visitors' convenience, we have partnered with the Delhi Metro Railway Corporation. DMRC is our ticketing and parking partner. The entry and parking tickets will be available online through the surajkundmela.co.in as well as the DMRC website and at all the metro stations besides the Mela gates. Insofar as the stalls are concerned, there are 1,220 stalls which have been set up by our theme states and cultural partner, as well as central government ministries and organizations, including the ministries of Textile, Social Justice, Rural Development, Jute Board, NABARD, etc. We also confer awards to outstanding craftsperson
who are participating in the Mela. These include the Kala Ratna, Paramparagat, Kalamani, Kalanidhi and Kalashri awards, which are much sought after. This year, besides the pavilions that are being set up by the theme states, that is Odisha and Madhya Pradesh, other states like Rajasthan, Jharkhand and Goa are also setting up their own pavilions to showcase their tourism potential and their heritage. We would also invite you to visit the pavilion that is being set up by the Haryana State Archaeology Department, which will showcase Haryana's rich heritage starting from the prehistoric era continually up to the historic period. The Mela authorities, in partnership with the Haryana Art and Culture Department, has also this time set up a rich lineup of performances. Some of the events would be musical performances by Dr. Satinder Sartaaj, Mamme Khan, Papon, Gurtaj, among others. This time we also have a poetic interaction with the award-winning Bollywood lyricist and poet Dr. Irshad Kamil. Classical dance performances by Priya Venkatraman, Devika Devendra, Mangalamukhi, as well as a stand-up comedy show for the first time in the Mela, and cultural performances by Odisha, Madhya Pradesh, fashion show. And apart from this, we have daily performances by the Banchari, Been Sapera, Nagada Party, magic shows, bamboo walkers, which will add to the rich ambience of the Mela. As you would have noticed, the amusement zone is also offering all kinds of fun rides for the children who will come to the Mela. We have the Apna Ghar of Haryana, which will show you the culture of Haryana, which has always been very popular with the visitors. A golf cart, battery operated rickshaws will be available on request. Delicacies from across the India will be available at the food court, besides with both Odisha and Madhya Pradesh are setting up their own food stalls there. I once again thank you all for coming today and welcome you all to enjoy this 17-day extravaganza starting from February 7th and ending on 23rd. The Union Minister for Tourism and Culture will be the chief guest on 7th, and Dr. Jaishankar, the Minister for External Affairs, will be the chief guest on the closing ceremony of the Mela. Thank you so much and most welcome. इस तरह की आपको चाहें तो कुछ सवाल हम आपकी तरफ से लेना चाहेंगे। थोड़ा सा कम समय है, उसमें संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। सीधा सवाल प्लीज। इनके डीसीपी यहाँ है, डीसीपी अभिषेक जोवल जो है वो हमारे मेला पुलिस अधिकारी हैं। He will be in charge of the entire Mela security arrangement under the supervision of the CP, and we assure you कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट का पुख्ता इंतजाम किया गया है और कोई शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू। Artisans and artists, cultural artists. It consists of Myanmar, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Thailand, and of course India. BIMSTEC. Next, please. Sir. अनिल मेहता, दैनिक जागरण। मैं जानना चाहता हूं कि थीम स्टेट 2 है इस बार, तो ये प्रयोग आपकी तरफ से था या उनका प्रयास किया गया दोनों राज्यों का? क्या मुख्य कारण रहा? हमने चिट्ठियां लिखी थी, कई सारे स्टेट्स को लिखी थी टू इनवाइटिंग देम टू बी आवर थीम स्टेट। उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश स्टेप फॉरवर्ड एंड दोनों ने बोला कि हम थीम स्टेट बनना चाहते हैं, तो हमने सोचा दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एनरिच द मेला फर्दर, और हमने दोनों को इनवाइट किया। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं, और साथ ही इस मेले को सही तरीके से ले जाने के लिए, चलाने के लिए भी आपको शुभकामनाएं। मैं सुनील परिहार टीवी 100 से। मेरा सवाल ये है कि हर बार मेला जैसा लगता है वैसे ही चलेगा या कुछ नया मेले में आप करने जा रहे हैं, वो बताइए प्लीज। नया तो जैसे आपने पहले ही देख लिया कि थीम स्टेट ही हमारे इस बार 2 है, एंड पार्टनर नेशन नॉर्मली 1 होता है। इस बार पार्टनर नेशन क्योंकि बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर कर रहा है,
तो नेशंस इतने आ रहे हैं, तो वो एक वैरायटी एंड कल्चरल रिचनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, हमने टिकटिंग पार्टनर जो है, हमने दिल्ली मेट्रो को साथ ले लिया है, तो वो टिकटिंग पार्टनर हमारे बन गए हैं। हमारे एडवर्टीजमेंट जो हैं वो भी दिल्ली मेट्रो के हर स्टेशन में चल रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। चौथी बात ये कि इस बार पेविलियंस, नॉर्मली पेविलियन जैसे 3 स्टेट लगाते हैं, इस बार राजस्थान में भी पेविलियन लगा रहे हैं, झारखंड भी पेविलियन लगा रहा है, गोवा भी पेविलियन लगा रहे हैं। और हमारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, हमने आर्ट एंड कल्चर के साथ पार्टनर किया है, स्टेट आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के साथ। सो वी हैव अ रिचर अरे ऑफ प्रोग्राम्स along with our theme nations, who are theme states, who have been very, very cooperative and enthusiastic in it. मैम, मेले के लिए एक और नई जान देने के लिए क्या इस बार आप किसी को इस मेले का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं? हमारे सारे आर्टिस्ट और हमारे सारे आर्टिजन हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैम नमस्कार, सुधीर शर्मा डीडी न्यूज से। पिछले दिनों मंत्री जी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप भी उपस्थित थे। उस वक्त भी मैंने एक क्वेश्चन किया था कि मीडिया की पार्किंग हमें सेफली दी जाए, लेकिन आज पहला दिन क्या, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम वहां पहुंचे, अनवांटेड गाड़ियों से मीडिया सेंटर भरा हुआ है, हमें गाड़ी कहीं और लगानी। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि आप श्योर करें कि मीडिया की गाड़ियों के लिए जो पार्किंग सुरक्षित हो। I will discuss this with our officers. We will assure you that you will not have a problem from tomorrow onwards. थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, मेरा नाम मुकेश राजपूत है और मैं जनता टीवी से हूँ। मेरा एक सवाल है कि पार्किंग की व्यवस्था बेहतर की गई है, लगभग 12,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो क्या माने कि इस बार जो सूरजकुंड मेला है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली, लोगों का क्राउड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा? क्या इस तरह की कोई व्यवस्था को लेकर किया गया है? और सीसीटीवी की जो यहाँ पर व्यवस्था की गई वो किस तरीके से है? देखिए, जहाँ तक पार्किंग का सवाल है, we would always like that more and more people visit the Mela. Like I told you, this time we have partnered with the Delhi Metro Corporation for the parking. एंड अगर आपको याद होगा, आप पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो मंत्री जी ने एक मुद्दा उठाया था कि पार्किंग इस बार ज़्यादा होनी चाहिए, उसी को मद्दे रखते हुए हमने ज़्यादा पार्किंग किया है। सीसीटीवी मेले में ऑपरेशनल है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। नमस्कार, मैं किशोर शर्मा गुड़गांव मेल से। मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, तो सोशल मीडिया का जैसे माना जाता है, आप भी कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इस बार का सोशल मीडिया की एंट्री मेले में बैन है। कुछ पत्रकारों की आपत्तियां हैं कि सोशल मीडिया को रोका जा रहा है। सोशल मीडिया का बिल्कुल देख रही थी, तो कई सारे सोशल मीडिया वाले अंदर बैठ के वीडियोज नहीं भी रहते, किसी ने उनको रोका नहीं। एक मिनट, इसमें अगर आपको याद होगा, ये डिसाइड हुआ था कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स है, we will facilitate that. Yeah, there should be guidelines for anyone. About 10,000 and above followers, the DPRO is taking care of that. Please don't worry about it. I would request our partner nation, partner state. I keep saying nations, forgive me. I will request our partner state, Madam. कुछ बोलना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर मृणालिनी है। मैं विशेष रजत कमिश्नर हूँ और आज मैं उड़ीसा स्टेट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय कल्चर विभाग और हरियाणा कल्चर विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें ये अवसर प्रदान किया गया है कि हम उड़ीसा की ऐतिहासिक संस्कृति को पूरे देश के सामने इतने बड़े मेले में, जहाँ पे लाखों प्रतिभागी रहते हैं, हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और हमारी ओर से बहुत विस्तृत
अरेंजमेंट्स की गई हैं आपके मनोरंजन के लिए, आपके खान पान के लिए, आपके उड़ीसा की संस्कृति को आपको परिचय कराने के लिए, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ ही सप्ताह पहले उड़ीसा कॉन्क्लेव में उड़ीसा आकर हमको काफ़ी मोटिवेट करके गए हैं कि उड़ीसा की संस्कृति को आगे लाया जाए। उड़ीसा बहुत शीघ्र भारत का अग्रणी इंडस्ट्रियल टूरिस्ट राज्य के रूप में विकसित होने जा रहा है। इसलिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जो कल आएंगी प्रभाती परिड़ा मैडम, उनके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ आए हैं। और आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई जब हमने फीडबैक लिया कि उड़ीसा की ओर से बहुत अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। मैं उड़ीसा सरकार की तरफ से और हमारे सांस्कृतिक प्रतिभागियों की तरफ से आप सबका उड़ीसा पवेलियन में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप हमारे सत्कार के प्रतिभागी रहेंगे, हमारे खान पान का आनंद उठाएंगे, हमारे कल्चरल और सांस्कृतिक प्रोग्राम्स का के प्रतिभागी होंगे, जिसमें पद्मश्री इलियाना सिगारेस्टी आपको ओडिसी नृत्य प्रस्तुत करेंगी, अरुणा मोहंती जी हैं, हमारे पद्मश्री सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी की कलाकृति आप आज भी देख पाएंगे जो प्रवेश द्वार पर उन्होंने बनाई है। उसके अलावा संबलपुरी नृत्य, गोतीपुआ नृत्य, कई तरह के नृत्य हम आपके लिए प्रस्तुतिकरण के लिए हम लेकर आए हैं। मेरी आशा है आप लोग उड़ीसा को इस मेले के द्वारा आप बहुत अच्छे से जानेंगे और उसके बाद आप आनंदित होंगे और उड़ीसा आएंगे और हमें अपने सत्कार का अपॉर्चुनिटी देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं फिर आशा करती हूँ कि आप लोग उड़ीसा पवेलियन आकर खूब एंजॉय करें, हमें अपना फीडबैक दें, क्योंकि हमारा निरंतर प्रयत्न यही रहेगा कि उड़ीसा को हम बहुत अच्छी तरह से पूरे देश के सामने और पूरे दुनिया के सामने इस मेले के थ्रू प्रस्तुत करें, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक मेला है जिसमें लाखों करोड़ों लोग हर वर्ष भाग लेते हैं और उड़ीसा मध्य प्रदेश के साथ इसमें सम्मिलित होकर हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर नामी स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर उड़ीसा। मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं, वहाँ के पर्यटन और संस्कृति विभाग से देवेंद्र राय जी, वो भी क्या हाईलाइट्स आपके स्टेट की तरफ से, आपके स्टेट की तरफ से हैं इस मेले के लिए, थोड़ा सा आपसे शेयर करेंगे प्लीज। देवेंद्र राय जी। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र राय है। मैं रेजिडेंट मैनेजर टूरिज्म कम लाइजन ऑफिसर टूरिज्म कल्चर मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो उपस्थित सभी मीडिया जनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोग हमें सुनने के लिए आए। सूरजकुंड मेला अथॉरिटी और पर्यटन विभाग हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार, इन तीनों का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने हमें मध्य प्रदेश को थीम स्टेट का अवसर प्रदान किया उड़ीसा के साथ मिलकर। मध्य प्रदेश सूरजकुंड मेला में 7 तारीख से 23 तारीख तक थीम स्टेट के तौर पे अपनी सहभागिता कर रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की लोक कला जनजातीय संस्कृति का हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इसमें 14 हमारे ट्रुप्स परफॉर्म करेंगे अलग अलग दिन, और 17 को मध्य प्रदेश का थीम स्टेट दिवस है, जिसमें बैजू बाबरा की नाट्य कला प्रदर्शनी और रानी दुर्गावती, वीरांगनी रानी दुर्गावती की भी नाट्यशाला का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के आर्ट एंड क्राफ्ट्स, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिजन्स स्टॉल क्रमांक 151 से 190 पर उपस्थित रहेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के सारे हथकरघा हस्तशिल्प उपलब्ध रहेंगे। मध्य प्रदेश की थीम पवेलियन में आपको लोक कला, संस्कृति, पुरातत्व, पर्यटन की प्रदर्शनी ये सब दिखाई जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके माध्यम से दिल्ली एनसीआर की लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि मध्य प्रदेश विविधताओं का प्रदेश है, देश का दिल कहा जाता है। तो आप सभी यहाँ आएँ और मध्य प्रदेश की झलक का आनंद लें। और फिर से एक बार पुनः हरियाणा सरकार, सूरजकुंड मेला अथॉरिटी और उड़ीसा का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे साथ सहभागी हैं इस सूरजकुंड मेला में। धन्यवाद।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, धन्यवाद आप सभी का। और यहाँ हम सबके बीच जो भी यहाँ मंत्र है, आप सभी जो आपकी जानकारी के लिए एक सूचना आपको देना चाहेंगे, क्योंकि पेपर बचाने के उद्देश्य से सारी जो प्रेस नोट की जो डिटेल्स है, प्रेस नोट बल्कि आपको शेयर किया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ईमेल के जरिए या बीपीआर ऑफिस की तरफ से। मैडम, आज जो प्रेस वार्ता की गई है, कल से सूरजकुंड मेला शुरू होने वाला है, किस तरीके से रहेगा, क्या कुछ व्यवस्था रहेंगी, कौन शुभारंभ करने के लिए आए? ये हमारा 38वां सूरजकुंड मेला है। ये प्रारंभ हो रहा है 7 फरवरी से और 23 फरवरी तक चलेगा। इसमें जो इनॉग्रेशन के लिए हमारे मुख्य अतिथि हैं वो यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अपने मुख्यमंत्री साहब भी आएंगे और अरविंद शर्मा जी जो हमारे हरियाणा के टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो भी आएंगे। 10 बजे है ऑन 7। इसके अलावा हमने आमंत्रित किया है जो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए हमने हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी को आमंत्रित किया है और वो है 23 तारीख को। टाइम अभी निर्णय होना है। इस बार हमारे मेला में 2 थीम स्टेट हैं, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, और हमारा पार्टनर नेशन नहीं है, इस बार हमारा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो है बिम्स्टेक। इसमें आते हैं बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड एंड भूटान एंड श्रीलंका। तो इस बार हमारे मेले में आपको दिखेगा, क्योंकि 2 स्टेट्स हैं और विभिन्न कंट्रीज़ हैं, तो आपको ज़्यादा आर्टिस्टिक कल्चरल हेरिटेज आपको आनंद मिलेगा। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आप सबको कि जरूर आएँ। और 3 वीकेंड इस बार रखे गए मेले में। 3 वीकेंड बिल्कुल सही। तो उससे जो है कि कितना इजाफा होगा दर्शकों में, कितना फायदा? छुट्टियाँ 6 हो जाएंगी। उसी नहीं, 6 नहीं, एक बीच में एक आई थिंक 12 तारीख को भी छुट्टी है। तो वी आर होपिंग मोर एंड मोर पीपल कम, द मोर द बेटर फॉर द मेला, क्योंकि हमने अपने राज्य की जो परंपरा है, अपनी जो संस्कृति है, वो भी हमने दर्शानी है। और उसी में हमने आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी एक पवेलियन दिखाया है जिसमें आपको राखीगढ़ी, पुना, प्री हिस्टोरिक पीरियड से जो एक हरियाणा की जो एक यूनिक हेरिटेज है कि हम प्री हिस्ट्री से लेके आज के मिलीनियल सिटी गुड़गांव तक एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन का एक कंटिन्यूटी है, वो दर्शाए। मैडम बड़ी बात है जैसा आप जानते हैं, इसको लेके हमने सिक्योरिटी के सभी पुख्ता बंदोबस्त पूरी तरह से जो है किए हैं। आज जैसा आप देखेंगे इसकी रिहर्सल भी है और अभी आगे भी जो है शाम तक इसकी रिहर्सल जो की जाएगी। इसको लेके हमने यहाँ पे पूरे मेला परिसर में जो 600 सीसीटीवी कैमराज है जिनको इंस्टॉल किया है, जो चप्पे पे 600 सीसीटीवी मतलब जो है जो लगभग हर किसी व्यक्ति की जो एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने में सक्षम है, और एक जो उसका कंट्रोल रूम भी बना है जिससे हर किसी व्यक्ति की जो है गतिविधियों पर निगरानी रहेगी। इसके अलावा हमने मिनिमम 1600 पुलिस पर्सन है जिनको हमने रिक्रूट किया है, जो लगभग 22 कंपनीज हैं, और जिसको रश के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से, जैसे वीकेंड्स पे है उसके हिसाब से इसको बढ़ाया भी जाएगा। इसके अलावा शहर के अंदर भी जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो इससे जो है अलग है। एक आपने और एक्शन लिया है कि जो सूरजकुंड रोड फरीदाबाद से आता है वहाँ भारी वाहन आपने बंद कर दिए। जैसे जो है 7 तारीख से लेकर जो है 24 तक जो ये हैवी व्हीकल्स हैं इनकी एंट्री जो है वो डे के समय में, यानी कि सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक रात तक ये जो एंट्री इनकी बंद रहेगी, ताकि जो है वहाँ पे जो व्हीकल्स के लिए स्पेस मिले, जो है जो बाकी का जाम की स्थिति ना। महिला सुरक्षा को लेकर क्या किया जाएगा? महिलाओं देखिए, जैसे महिला सुरक्षा को लेकर हमने जो है यहाँ पे सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पे ऑलरेडी है। महिला पुलिस कर्मियों के भी हमने जो है समुचित नंबर्स में तैनाती की गई है, और महिला सुरक्षा के सभी जो है व्यापक बंदोबस्त यहाँ पे। सर, वीआईपी जब मूवमेंट होता है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड ये है कि मीडिया को सिक्योरिटी कैसे देंगे सीपी साहब, क्योंकि मीडिया की जो सबसे जो पार्किंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा पुलिस का कब्जा होता है। 2 सवाल है। ऐसा जैसे वीवीआईपी मूवमेंट को लेके भी पहले यह है कि जो है सारी व्यवस्थाएं ध्यान में रखी जाएगी कि आम आदमी को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो,
और जैसे आप जो मीडिया पार्किंग का है ना, ये एश्योर जो है इसको लेकर भी बैठ के व्यवस्था भी बना लेंगे अलग से। इसको लेकर भी एश्योर की जो आपकी नियत पार्किंग है वो आपके लिए मिलेगी, ठीक है। हम सभी कंसर्न की ब्रीफिंग कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, हमारे पुलिस ऑफिसर, अन्य अफसरों को भी कह देंगे जो आप लोगों के लिए पार्किंग है वहाँ पर ड्यूटीज में रहेंगी वो मीडिया के लिए के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाए, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल नहीं। थैंक यू सो मच। दूसरा, हमने सेंस में ध्यान में रखते हुए वहाँ से और अधिक जो पुलिस फोर्स को मंगाया है, तो वहाँ से भी हमें पुलिस फोर्स मिलेगी जिसके अंदर आपको 12 गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, जिसके अंदर 2 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। तो वो शहर के अंदर भी जो पुलिस व्यवस्था बंदोबस्त है उसकी जो है समग्र व्यवस्था। थैंक यू सर। इसके अलावा जो मीडिया वाले शो है इसमें पीआरओ वो आपको पर्सनली करना पड़ेगा। मैं पीआरओ को कह दूँगा आपका कोई भी शो ना डायरेक्ट हमारे पीआरओ है, आप उनसे संपर्क कर लो, मैं पीआरओ को कह दूँगा। उसके बाद ठीक है, ये देखना कोई भी शो आप सीधे 1 to 1 इनको बता दें, आप शो करा दें आपके लेवल पर, आपके लेवल पे नहीं होता तो जो गाड़ियाँ हैं ना पुलिस की वो मीडिया पार्किंग से दूरी बनाए रखने कर पाए, हम उनकी बिना घुस रहे वो हमारी बिना घुस रहे। तो सेकंड चैनल पे ये रहेगा, एसीपी अभिमन्यु है या हमारे दोनों डीसीपी साहिबान है, आप इनको बता दें, ठीक है। उसके बाद भी नहीं है तो कभी भी मुझसे मिलो, मैं कोई